नमस्ते ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज 15th of March 2022, Tuesday evening, 6:42 p.m. Indian Standard Time. और let's first take a look at the Nifty and the Bank Nifty first. आज मार्केट में हुआ क्या, और उसके बाद जो large cap stocks है, the stocks which are meaningful to the overall index, the top 15 stocks, within these stocks, which stocks can give us a bounce back going forward, and couple of stocks, दो stocks जिस पे मैं ध्यान देना चाहूँगा आगे जाके बाकी इस हफ्ते में. So first let's talk about Nifty Bank Nifty. हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे दैट 16,800 and 17,000 के रेंज पे रेजिस्टेंस आना चाहिए, एंड बाखूबी आज का जो हाई है वहाँ से टुडे वी हैव सीन अ प्रिटी डिसेंट correction. 236 points for the Nifty near month future, 1.4%. Highest point was 16,928. So the index essentially played out the way we kind of envisaged. जहाँ से हम लोग ने रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट किया था निफ्टी के लिए, मोर और लेस वहीं से, उसी जोन से निफ्टी ने आज के ट्रेड पे एक करेक्शन दिया है. 75 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर ध्यान दे, if we now take a look at the 75-minute time frame, then what we will clearly notice is this is the bounce back that we had, and within this bounce back we had these two corrections, two legs of corrections, these two. Clearly this leg of correction is slightly more lengthier than this one. So as of now अगर हम लोग 75-minute टाइम फ्रेम पे ध्यान दें तो बाजार का ये जो रिसेंट बाउंस बैक था, इस दरमियान इसने दो करेक्शंस दी है. ये जो आज का करेक्शन और ये जो पहले 2 दिन पहले का करेक्शन, शॉर्ट टर्म करेक्शन था. ट्रेंड अभी तक अप है, एंड नीचे के भाव पे अगर वो फिसलता है फर्दर कल के ट्रेड पे, तो एक इस जोन पे 16,400, 16,450, 16,400, 450 काइंड ऑफ जोन, लेट्स से 16,400, 16,500 should offer some bit of support for the index. We can clearly see how deeply oversold the momentum indicators have become. Momentum per se has started to drop down slowly, but abhi tak it will be too early to take a call whether the bounce back is over or not. In fact, I think that this week is going to be very, very interesting, because 16,817 के का जो रेजिस्टेंस है वो उतनी आसानी से इट विल नॉट बी एबल टू ब्रीच इट विद दैट ईज. एंड देखना ये है कि जब ये अभी फिसलना स्टार्ट किया है तो ये नीचे 16,400, 16,500 का लेवल होल्ड कर पाता है कि नहीं. फॉर ऑप्शन राइटर्स दिस वीकली एक्सपायरी इज गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी. लास्ट वीक का जो ऑप्शन एक्सपायरी था वो पुट राइटर्स के लिए अच्छे थे, उसके पहले जो 3 एक्सपायरी थे वो कॉल राइटर्स के लिए अच्छे थे, लेकिन आज जाके अभी 2 दिन बाकी है इस थर्सडे को, which one will be heavier, it's little difficult to say. It's going to be tricky for them also. What can we expect? लेवल्स डिस्कस कर लेते. लेवल्स ऊपर की तरफ वही रहने वाले हैं, 16,800 और 17,000 का जो रेंज है वही रहने वाला है. आप नोटिस करेंगे that on the 75-minute time frame 1, 2, 3, 4, 5 bars have come down, and last 3 bars have made lower highs and lower lows. So at least a movement above the last bar's high, at least this is the bare minimum that the index can do to show some strength, which is 16,716. अगर ये आज का लो तोड़ देता है then definitely 16,400 bare minimum movement इंडेक्स का ईजिली हो सकता है. यहाँ पे एक छोटा सा गैप बना था, यहाँ पे एंकर्ड वीवैप भी है इंडेक्स का. सो या 16,400, 500 विल बी अ bare minimum level for the index. Time to be a little careful, I'm quite sure. Bank Nifty, very very similar kind of a movement. आज का करेक्शन बैंक निफ्टी के लिए 389 पॉइंट्स था, 1.1%. In fact, it did little bit better than the Nifty. But again, we were talking about some degree of correction, and it has delivered in today's trade.
look at the 75 minute time frame and clearly you will notice couple of things. ये जो 75 minute का time frame है, यहाँ पे कुछ चीज़ clearly समझ में आ जाता है. जो anchored VWAP का resistance है, इसने अभी तक इसको अच्छी तरह से तोड़ के ऊपर sustain नहीं कर पाया है, और नीचे जाके यहाँ पे 34,600 के आसपास जो इसका previous swing low है, आसपास यहाँ पे इसको support मिल सकता है. I feel that the index is going to bounce back at the first half of tomorrow's trade unless there's no nasty surprise with a gap down or something. These kind of hidden divergence, when we generally notice with the momentum indicators, especially after moving on to an uptrend, they generally try to deliver on the upside. So keeping this in mind, ये दोनों बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट्स पे ये जो हिडन डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियरली दिखेगा. और क्योंकि ये इंडेक्स ने रिसेंटली एक अप ट्रेंड रिवर्स किया है शॉर्ट टर्म, तो इसका ऊपर में और एक बार कोशिश करना 16,800 और फिर से 1700 को छूने का कोशिश करना, आई थिंक द इंडेक्स will try to do that going forward, but it's not going to be easy. I think the bounce back was pretty good. The bounce back reversed the short term trend. Now the key thing is for the rest of this week is whether it manages to sustain 16,500. If not, it's going to drop down clearly, or whether it still has the strength to go back to 17K or not. So we might be looking towards a range bound market if at all. So 16,500 400 का लेवल और ऊपर में 17,000 का लेवल. आई थिंक इंडेक्स कोशिश करेगा इस रेंज के अंदर भी अगर रहे तो भी ठीक है, बट कोशिश यही रहेगा. आई थिंक इफ़ यू टेल मी फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू 60-40 60% आई फील ये फिर से और एक अटेम्प्ट लेगा 16,817 के. और अगर आज का लो निफ्टी बैंक निफ्टी तोड़ देता है कल जाके, देन फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक आई एम क्वाइट श्योर ये नीचे ही रहने वाला है. दो स्टॉक्स डिस्कस कर लेते. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है. इन्फो लाइन यूज़ करके अगर लो टू हाई कैलकुलेट करें तो इस बाउंस बैक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए 15% का रहा है, विच इज़ अ प्रिटी शार्प बाउंस बैक. ट्रेंड इसका अभी तक डाउन ही है. इट इज़ स्टिल इन अ वेरी मच डाउन ट्रेंड एंड द मोमेंटम इंडिकेटर्स हैव स्टार्टेड टू गो ओवरबॉट. इट इज़ coming close to a gap down. एक प्रीवियस गैप डाउन के आसपास लेवल्स पे आ चुका है, जो कि आगे कुछ हद तक सपोर्ट्स का रोल प्ले कर रहा था. सो यहाँ पे सपोर्ट्स थे, ये सपोर्ट टूटा, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना और फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस पे वापस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ चुका है. ऐसे सेटअप्स जनरली सजेस्ट करते हैं कि स्टॉक स्लो डाउन करेगा और हो सकता है नीचे की तरफ एक फिर से ओपन अप करे. सो दैट्स द सेटअप ऑफ स्टेट बैंक. दिस इज़ अ डीकॉय बार विच आई सी. सो इट्स अ मेक और ब्रेक स्टेट बैंक के लिए. आगे जाके आई थिंक इस हफ्ता स्टेट बैंक के लिए मेक और ब्रेक होने वाला है. ये स्टेट बैंक का 75 मिनट का टाइम फ्रेम है, वेरी क्लियरली वेरी सिमिलर टू द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, राइट. एंड यहाँ जाके वही कॉल होगा कि अगर इस स्टॉक को आगे लेके जाना है तो इसका रीसेंट हाइस को निकालना ही पड़ेगा, वरना दिस स्टॉक इज फॉलोइंग. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स पे आप ये ध्यान दे सकते हो फॉर द रेस्ट ऑफ दिस वीक, दैट इज़ क्या वो आज का लो कल या परसों जाके तोड़ता है कि नहीं. इफ़ वी फाइंड स्टॉक्स विच स्टार्ट्स टू ब्रेक टुडेज लो, then for the rest of this week it's not a good sign, especially within the large cap. So I'll be closely watching State Bank. I'll be also closely watching Reliance Industries, because Reliance Industries का जो ट्रेंड है वो ना ही स्ट्रांगली अप है ना ही स्ट्रांगली डाउन है. मैं इंटरमीडिएट ट्रेंड का बात कर रहा हूँ. अगर हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेंड पे ध्यान दें, 75 मिनट चार्ट देखें, तो ये एक अप ट्रेंड रिवर्स कर चुका है. इट इज़ इन एन अप ट्रेंड. इट हैज़ गिवन अ शॉर्ट टर्म बाउंस बैक. ये क्लियरली एक ब्रेकआउट फेलियर था और ये अपने ब्रेकआउट को फेल कर चुका है. सो अगर इस स्टॉक को ओवरसोल्ड है, सो अगर इस स्टॉक को थोड़ा भी स्ट्रेंथ दिखाना है तो ये अगर आज का हाई निकाल देता है, विच इज़ क्लोज टू यस्टरडेज हाई, दिस विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइन फॉर दिस स्टॉक. एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टॉक. ये कोई एरा गैरा स्टॉक तो है नहीं. 2433, 2432.7. सो 2433, 2435 का जो फ्यूचर्स में इसका लेवल है, I think it is going to be a very crucial level for Reliance Industries going forward.
अगर ये निकाल देता है और सस्टेन करता है, then one should look at this stock from a sustained long term, uptrend point of view. अगर ये नहीं निकालता है, on the flip side, if it continues to weaken and breaks below today's low, then like most of the stocks, then the markets will tilt down again. But ये tilt down होने वाला है या हम लोग 17,000 को ब्रेक करेंगे, इसका पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है. 60% I feel it will attempt to go towards 17 की again. और अगर फेलियर होता है, then the shorts will have a nice ride again on the downside, right? Choppy रहने वाला है, so please be careful. Take care of your positions. Risk management is extremely important, right? So take care of yourselves, trade well, trade wise.